قاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں پی آئی سی کی ایمرجنسی کے آئی سی یو میں آتش زدگی آگ لگنے کے باعث آئی سی یو میں دھواں پھیل گیا. تمام مریضوں کو آئی سی یو سے نکال دیا گیا. ایم ایس ڈاکٹر عامر بٹ کا کہنا ہے کہ آتش زدگی کے باعث کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا. تمام مریض محفوظ ہیں. ایمرجنسی معمول کے مطابق چل رہی ہے. اہم خبر آپ کو بتا رہے ہیں پی آئی سی کی ایمرجنسی کے آئی سی یو میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے. اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں سجاد حسین سے. جی زین بتائیے گا. زین اگر آپ سن پا رہے ہیں تو ہمیں بتائیے گا. کچھ دیر قبل کا یہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر جو ہے وہ آگ لگنے کے پی آئی سی کے جو ہے وہ آئی سی یو میں جو ہے وہ آگ لگی تھی اور آگ جو ہے وہ اے سی جو ہے کہ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی اور اس دوران آگ لگنے کے بعد آئی سی یو میں جو ہے وہ دھواں پھیل گیا اور اس دوران مریض جو ہے وہ آئی سی یو اندر موجود تھے. دھواں پھیلنے سے وہ بھی جو ہے وہ متاثر ہوئے. ابتدائی طور پر جو ہے وہ عملے کی جانب سے تمام مریضوں کو جو ہے وہ باہر جو ہے وہ نکالا گیا. اس دوران وینٹیلیٹرز پہ بھی کچھ جو ہے وہ مریض موجود تھے. جب ریسکیو نے جو ہے وہ موقع پر پہنچ کر جو ہے وہ اس وقت آگ پر مکمل طور پر جو ہے وہ قابو پا لیا گیا ہے. کوئی بھی جانی نقصان جو ہے وہ سامنے نہیں ہے. اس حوالے سے ایم ایس پی آئی سی کا کہنا ہے کہ جو آگ ہے اس پر مکمل طور پر قابو پا لیا گیا ہے. کسی کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ اس دوران ڈاکٹر نرس اور ایک گارڈ بھی جو ہے وہ آگ کے باعث جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. ابھی تک بھی جو ہے وہ ایمرجنسی معمول کے مطابق جو ہے وہ نہیں لائی گئی. اگر میرا کیمرہ مین عمیر رئیس اگر آپ کو میرے پیچھے دکھا سکے تو بڑی تعداد میں ابھی بھی پی آئی سی کو جو ہے وہ بند کیا گیا ہے اور جو لواحقین ہیں کچھ جو مریض اندر موجود ہے جو وینٹیلیٹر پہ تھے ان کے لواحقین باہر کھڑے ہیں اور اندر جانے کی التجا کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر جو ہے وہ دھکم پیل بھی جو ہے وہ دیکھی جا سکتی. جو گارڈز کھڑے ہوئے ہیں ایمرجنسی کے باہر ان کی جانب سے جو ہے وہ لواحقین کو دھکم پیل کیا جا رہا ہے, سائڈ پر ہٹایا جا رہا ہے. جبکہ دوسری طرف ایم ایس یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو ایمرجنسی ہے جو آئی سی یو ہے وہ معمول کے مطابق جو ہے وہ چل رہی ہے. جبکہ اس قسم کی کوئی بھی جو صورتحال ہے وہ دیکھنے کو نہیں مل رہی. ابھی بھی یہاں پر جو ہے وہ گارڈز کی جانب سے جو ہے وہ ایمرجنسی کو مکمل طور پر جو ہے وہ بند رکھا گیا ہے اور کسی بھی لواحقین کو اندر جانے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا رہی. تاہم جو ریسکیو اہلکار جو یہاں پر آئے یہاں سے جا چکے ہیں. آگ پر قابو جو ہے وہ پا لیا گیا ہے اور ابتدائی رپورٹ کے مطابق اے سی جو ہے وہ چل رہا تھا جس میں جو ہے وہ شارٹ سرکٹ ہوا اور شارٹ سرکٹ کے باعث جو ہے وہ آگ لگی اور آگ لگنے سے جو ہے وہ پوری جو ہے وہ ایمرجنسی میں جو ہے وہ آئی سی یو میں جو ہے وہ دھواں پھیل گیا. جو ہے وہ اب تک مکمل طور پر قابو پا لیا گیا ہے. نقصان کا تخمینہ جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے کہ آگ لگنے کے باعث جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے. جی ٹھیک ہے زین علی, آپ ہمارے ساتھ رہے گا. آپ کو بتا رہے تھے پی آئی سی کے ایمرجنسی کے آئی سی یو میں آتش زدگی کا یہ واقعہ پیش آیا ہے. اسی کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ نمائندہ لاہور نیوز سجاد حسین بھی موجود ہیں. جی سجاد بتائیے گا, اکثر خبریں سامنے آتی ہیں کبھی کسی سرکاری اسپتال میں کوئی چھت گر جاتی ہے, کوئی دیوار گر جاتی ہے. آج یہ آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے, کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ جی بالکل, یہ محکمہ کی جو ہے وہ ادارہ جو ہے وہ اس کی انتظامیہ کی بہت بڑی نہلی ہوتی ہے کہ کسی بھی ہسپتال کے اندر جو ہے وہ مریضوں کے وارڈ کے اندر اور اوپر سے جو ہے وہ عام وارڈ نہیں ہے, یہ آئی سی یو ہے جہاں پہ مریض پہلے ہی وینٹیلیٹر پر موجود ہوتے ہیں اور بڑی مشکل سے مصنوعی سانس لے رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ اس طرح کی چیزوں کا بار بار چیک اپ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. لیکن انتظامیہ کی یہ نہلی ہے کہ انتظامیہ نے جو ہے وہ اس کا دھیان نہیں رکھا اور اس سلسلے میں جو ہے وہ اے سی کے اندر سے جو ہے وہ شارٹ سرکٹ ہو کر جو ہے وہ پورے اے سی کو آگ لگی اور جس کے باعث جو ہے وہ ارد گرد کی جگہ پہ آگ لگی اور دھواں پھیلنے کی باعث جو ہے وہ مریضوں کی حالت غیر ہو گئی. اب انتظامیہ کی طرف سے یہ بتایا نہیں جا رہا کہ دھوئیں کے باعث جو ہے وہ آگ کے باعث کتنے مریض متاثر ہوئے. کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ اس کو جلے ہوئے اے سی کو وہاں سے اٹھا کر فوری طور پر وہاں پہ جو ہے پینٹ کر دیا جائے اور پینٹ والے سے رابطہ کیا جا رہا ہے. لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. جو مریض وینٹیلیٹر پہ تھے اور جن کو فوری نکالا گیا ہے ان کے بارے میں کسی قسم کی رپورٹ نہیں بتائی جا رہی کیونکہ وہ پہلے ہی وینٹیلیٹر پہ تھے. ان میں سے کسی کا
कोई ऐसा इशू तो नहीं हुआ, तो इस बारे में अभी तक जो है वो इंतजामिया रिपोर्ट बताने से कासर है। लेकिन ये इंतजामिया की मुकम्मल नहली है कि वो शार्ट सर्किट, खास तौर पे आईसीयू के अंदर शार्ट सर्किट होने का मकसद है कि किसी किस्म का कोई इलेक्ट्रीशियन या एएमएस या डीएमएस इसको फॉलो नहीं करते या चेकअप नहीं करते, माहाना चेकअप नहीं होता तारों का। और इस हवाले से आपको मालूम होगा कि साबिक बहुत सारे जो हैं वो नुकसानात सामने आ चुके हैं अस्पतालों के अंदर आग लगने के बायस, और उसके बाद बाकायदा तौर पे महकमा सेहत की तरफ से अलर्ट भी जारी हो चुका था कि तमाम हॉस्पिटल जो है वो अपने अपने जो वार्ड्स हैं उनकी इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से जो है वो चेकअप कराएं, बल्कि उसके लिए बारे में रिपोर्ट तैयार करवाएं, और अगर कहीं पे कोई काम होने वाला है तो उसका टेंडर करके बाकायदा तौर पे जो है उस पे पैसे खर्च किए जाएं। महकमा सेहत की तरफ से तमाम हदायत जारी की जा सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो देखें कोताही बरती जा रही है। और आईसीयू के अंदर आग लगने का मतलब है कि जो इंतजामिया है उनकी तरफ से जो है। ठीक है सजाद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस बारे में बात करने के लिए हमारे पास नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद बिलाल भी मौजूद हैं। जी मोहम्मद बिलाल, बताइएगा कि हेल्थ और तालीम मरीम नवाज साहिबा की रेड लाइन है, और फिर भी इस तरह के वाक़े सामने आ रहे हैं सरकारी अस्पतालों में। कभी कोई वाक़या पेश आ रहा है, कभी कोई वाक़या पेश आ रही है। अस्पताल में हम इलाज करवाने के लिए जाते हैं और मुझे लगता है मरीज़ वहाँ से और ज़्यादा बीमार होकर वापस आते हैं। बिलाल से हमारा राबता मुनक़ता हो गया। आपको अपडेट कर रहे थे पीआईसी के इमरजेंसी के आईसीयू में आतिज़दगी का ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसके मुनासिब भी आप लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से एसी के अंदर आग लग गई है, और आग लगने के बायस आईसीयू में शदीद धुआं फैल गया है। तमाम मरीजों को आईसीयू से निकाल दिया गया। एमएस डॉक्टर आमिर भट्ट का कहना है कि आतिज़दगी के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, तमाम मरीज महफूज हैं, इमरजेंसी मामूल के मुताबिक चल रही है, और किसी आम वार्ड में ये वाक़या पेश नहीं आया, आईसीयू के वार्ड में यह वाक़या पेश आया है। बिलाल से हमारा राबता बहाल हो चुका है। जी बिलाल, बताइएगा अगर आप सुन पा रहे हैं कि हेल्थ और एजुकेशन हमारी वज़ीर आला साहिबा की रेड लाइन है, उसके बावजूद सरकारी अस्पतालों में इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी बिल्कुल, ये पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इमरजेंसी है। यहाँ पे रोजाना तकरीबन 2000 से 3000 जो इमरजेंसी के जो मरीज हैं वो रिपोर्ट होते हैं और इंतहाई क्रिटिकल हालत में होते हैं। तो कुछ अर्सा पहले इसी इमरजेंसी को रिवैम्प भी किया गया था, और आज इसी इमरजेंसी का जो आईसीयू था वहाँ पे 3 मरीज थे उस आईसीयू में लेटे थे, और जो एसी था वो आग लगने की वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, जिसकी वजह से धुआं फैल गया। धुआं फैलने की वजह से इतना धुआं हो गया था, लाहौर न्यूज़ वो फुटेज भी दिखा रहा है कि तकरीबन एक से दूसरा बंदा जो नजर था वो नहीं आ रहा था। मरीजों को सफोकेशन भी हुई, और सबसे अहम बात थी कि तीनों मरीजों हमारे जराये के मुताबिक तीनों मरीज जो थे वो वेंटिलेटर पे थे, और फिर मरीजों को फौरी तौर पर यहाँ से दूसरी जो नीचे वाला बेसमेंट में जो आईसीयू है वहाँ पे शिफ्ट किया गया है। और इस वक्त जो खस्तान इंसानियत की तरफ से कहा जा रहा है कि तीनों मरीज इस वक्त मुकम्मल तौर पर सेहतयाब है, उनको जो फौरी तबीयत सहूलियत की काम कर दी गई थी। तीनों मरीज इस वक्त स्टेबल है, उनका जो ट्रीटमेंट है वो किया जा रहा है। जबकि हमारे जो जराये हैं इनके मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि इसी वाक़े के दौरान एक डॉक्टर, एक नर्स और एक जो गार्ड है वो भी जख्मी हुआ है, और जो कहा यह जा रहा है कि वेंटिलेशन की वजह से, सफोकेशन होने की वजह से कुछ शीशे थे वो भी टूट गए थे, और जिस वजह से दफन तेल भी हुई, जिसकी वजह से कुछ जो गार्ड था वो भी जख्मी हुआ। और इस वक्त की इतलात के मुताबिक आग पर तकरीबन जो काबू है वो पा लिया गया है। वहाँ पे इस वक्त MSS PIC डॉक्टर आमिर भट्ट भी मौजूद है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PIC डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भी इस वक्त मौके पर मौजूद है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि मामूल की बात है, गर्मियों में तकरीबन शॉर्ट सर्किट के बायस जो आग ये लग जाती है, लेकिन अब हम इमरजेंसी के तमाम जो एयर कंडीशन सिस्टम है, HVAC और AC इन सब को सेट कर रहे हैं। इनकी वायर्स को भी चेंज किया जाएगा, और जो वायर जो होंगी वो खराब होंगी उनको तब्दील भी किया जाएगा, और कोशिश ये की जाएगी कि आइंदा जो गर्मियों का मौसम है यहाँ पे बेहतरीन तरीके से गुजर सके और कोई भी इस तरह का हादसा जो है दोबारा रूनुमा ना हो सके। बताया ये जा रहा है कि इस वक्त इमरजेंसी जो है आईसीयू के अलावा जिसमें ये वाक़या पेश है, इसके अलावा दीगर जो इमरजेंसी है वो मामूल के मुताबिक जारी है, मरीजों को केटर किया जा रहा है, और जो भी इमरजेंसी में मरीज आ रहा है उसको तबी सहूलियात इस वक्त फराहम की जा रही हैं।
जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद बिलाल और ज़ैन अली और सजाद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपको बताएं पीआईसी के इमरजेंसी के आईसीयू में आतिज़दगी का ये वाक़या पेश आया है और आग लगने के बायस आईसीयू में धुआं फैल गया है। तमाम मरीजों को आईसीयू से निकाल दिया गया और एमएस डॉक्टर आमिर भट्ट का कहना है कि आतिज़दगी के बायस कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ था। तमाम मरीज महफूज हैं, इमरजेंसी मामूल के मुताबिक चल रहे हैं और अस्पताल इंतजामिया कहना है कि गर्मी के मौसम में इस तरह के शॉर्ट सर्किट हो जाना मामूल की बात है। आइंदा ख्याल रखेंगे कि वार्ड्स के तमाम एसीज को चेक किया जाए। यहाँ शामिल करेंगे ब्रेक, देखते रहिए लाहौर न्यूज़। एहतजाज करने वाले डॉक्टर्स की बरतरफी के खिलाफ केस। लाहौर हाईकोर्ट ने बरतरफी के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। फैसले में लिखा गया है कि दरखास्त गुजारों को कोई शोकॉफ नोटिस जारी किया गया, दरखास्त गुजार के मौक़िफ़ को नहीं सुना गया। तमाम दरखास्तों पर मजीद कार्रवाई 3 जुलाई को होगी। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं अबू बकर तारिक से। जी अबू बकर तारिक, आगाह कीजिएगा। अबू बकर से हमारा राबता मुनक़ता हो चुका है। आपको बताएं एहतजाज करने वाले डॉक्टर्स की बरतरफी के खिलाफ ये केस है और लाहौर हाई कोर्ट ने बरतरफी के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। फैसले में लिखा गया है कि दरखास्त गुजारों का कोई शोकाज नोटिस जारी किया गया, दरखास्त गुजार के मौक़िफ़ को नहीं सुना गया। तमाम दरखास्तों पर मजीद कार्रवाई 3 जुलाई को होगी। एहतजाज करने वाले डॉक्टर्स की बरतरफी के खिलाफ केस। लाहौर हाई कोर्ट ने बरतरफी के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। फैसले में लिखा गया कि दरखास्त गुजारों को कोई शोकॉफ नोटिस जारी नहीं किया गया। पीपीएससी से मंसूब जाली वेबसाइट और सोशल मीडिया पेजेस के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। पीपीएससी का आवाम को जाली वेबसाइट और गैर मुसद्दिका सोशल मीडिया पेजेस से होशियार रहने की हिदायत। तर्जुमान के मुताबिक जाली अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मजीद तफसीलात इस बारे जानते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से जो पीपीएससी से मंसूब जाली वेबसाइट और सोशल मीडिया पेजेस के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। पीपीएससी को आवाम को जाली वेबसाइट और गैर मुसद्दिका सोशल मीडिया पेजेस से होशियार रहने की हिदायत की गई है। बाद जालसाज अनासिर पीपीएससी के नाम से जाली वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट चलाकर उम्मीदवारों को धोखा दे रहे थे और ज़राए का कहना है कि जाली ज़राए से झूठी असामियाँ, टेस्ट शेड्यूल और फीस की अदायगी से मुताबिक गलत मालूमात फराहम की जा रही थी। तर्जुमान का कहना है कि जाली अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उम्मीदवार सिर्फ पीपीएससी की सरकारी वेबसाइट और इस पर दिए गए तस्दीक शुदा सोशल मीडिया लिंक पर ही इस्तेमाल करें। जी बहुत शुक्रिया आतिफ परवेज आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कमिश्नर लाहौर ज़ैदिन मकसूद की शेख अली हजवेरी के मज़ार पर आमद। मज़ार की तकरीब के लिए इंतजामात की बाबत इजलास की सदारत की। कमिश्नर ने ग्रैंड गुंबद पर तामीराती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया और दरबार कंट्रोल कैमरों की फेड सेफ सिटी के साथ शेयर करने की हिदायत की। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, आगाह कीजिएगा इस दौरे बारे। लेकिन कमिश्नर लाहौर ज़ैदिन मकसूद ने शेख अली हजवेरी के मज़ार पर आज दौरा किया है। मज़ार की तकरीब के लिए इंतजाम की बाबत इजलास की सदारत की, जिसमें कमिश्नर लाहौर ने ग्रैंड गुंबद पर तमीराती कामों की पेशरफ्त का भी जायजा लिया, जबकि दरबार कंट्रोल रूम कैमरों की फीड सेफ्टी के साथ साथ शेयर करने की भी हिदायत की है। इजलास में सेक्रेटरी वकाफ, डीसी लाहौर व दीगर अहम अफसरान ने शिरकत की है। कमिश्नर ने तकरीब के लिए दरबार के गिर्द बेहतरीन लाइटिंग लगाने की हिदायत की है, जबकि कमिश्नर लाहौर ने अफसरान के हमरा कम्प्लेक्स के बैरूनी रोड्स और चौकों का भी दौरा किया है। जी ठीक है इमरान, आपका शुक्रिया। बुलेटिन को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं एन 138 पाकपतन से पीटीआई हमायत याफ्ता उम्मीदवार को इलेक्शन पिटीशन मंजूर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कामयाब उम्मीदवार अहमद रजा मानिका के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने आइंदा समात पर फ्री कैन को मजीद कार्रवाई के लिए तलब कर लिया है। जस्टिस अनवार हुसैन ने 9 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया है। NA 138 पाकपतन से पीटीआई हिमायत याफ्ता उम्मीदवार की इलेक्शन पिटीशन मंजूर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कामयाब उम्मीदवार अहमद रजा मानिका के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने आइंदा समात पर फरीकैन को मजीद कार्रवाई के लिए तलब कर लिया। जस्टिस अनवार हुसैन ने 9 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं एन 138 पाकपतन से पीटीआई हमायत याफ्ता उम्मीदवार की इलेक्शन पिटीशन मंजूर हो गई है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कामयाब उम्मीदवार अहमद रजा मानिका के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने आइंदा समात पर फ्री कैन को मजीद कार्रवाई के लिए तलब कर लिया। जस्टिस अनवार हुसैन ने 9 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया।
डिफेंसी पुलिस की कार्रवाई, घर में काम करने वाली चोर खातून मुलजिमा गिरफ्तार, मुलजिमा महविश से लाखों मालियत के तलाई जेवरात और नकदी बरामद, मुलजिमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। डिफेंसी पुलिस की कार्रवाई, घर में काम करने वाली चोर खातून मुलजिमा गिरफ्तार, मुलजिमा महविश से लाखों मालियत के तलाई जेवरात और नकदी बरामद, मुलजिमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। आपको अपडेट किया जा रहा है, डिफेंसी पुलिस की कार्रवाई, घर में काम करने वाली चोर खातून मुलजिमा गिरफ्तार हो चुकी है। मुलजिमा महविश से लाखों मालियत के तलाई जेवरात और नकदी भी बरामद हुए हैं। मुलजिमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले भी कर दिया गया है। शफीकाबाद के इलाके में बारिश के बायस गंदगी के ढेर, सड़कें जगह जगह से टूट फूट का शिकार, कई मेन होल्स ढक्कन से महरूम। शहरियों का कहना है कि कई सालों से इलाका मसाइल का गढ़ बन चुका, कोई सुनवाई नहीं हुई। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं मोहम्मद उसामा से। जो उसामा, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल इस वक्त सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। सीवरेज के मसाइल हैं, पानी की निकासी का मसला, और सबसे बड़े यहाँ पे सड़कें और गलियां नालियां मुकम्मल टूट फूट का शिकार हैं। और बारिश के बाद यहाँ पर चूंकि पानी मुसलसल खड़ा रहता है और गलाजत के हर जगह ढेर हमें नज़र आ रहे हैं, गंदगी के मसाइल हैं। अहले मोहल्ला को यहाँ पर शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये रिहायशी इलाका है। यहाँ पर बुजुर्ग भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, और जो मेन होल्स हैं, जो गटर्स हैं, उनके ढक्कन भी वहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पे शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी अहले मोहल्ला मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा, ये पीछे बहुत ज्यादा मसाइल हमें नजर आ रहे हैं, बारिश के बाद पानी भी खड़ा है और गलाजत के ढेर हैं, तो कोई मसला आपने किसी से कोई शिकायत की है? सर, ये हमने मसाइल जो है यूसी चेयरमैन और बलाल यासीन साहब का ये हल्का है, मियां नवाज शरीफ साहब का ये हल्का है, हमने उनसे ये सारे मामला डिस्कस किए हैं। सो हम लोग बेसिकली पूरा इलाका वहाँ गया है, लेकिन इसके बावजूद कोई नहीं सुनता। यहाँ ना सफाई वाला कोई आता है, ना यहाँ वासा वाले आते हैं, जो भी आता है वो पैसों के चक्कर में आता है। यहाँ प्राइवेट लोग बेचारे खुद इतने मजबूर हैं कि ना कोई मरीज हॉस्पिटल जा सकता है, ना कोई रिश्तेदार मेहमान आ सकता है। इलाका आपके सामने है, पूरा इलाका आपको दिखा देते हैं। बिजली के मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, इतने ज्यादा मसाइल हैं कि छोटे छोटे बच्चे गटरों के ढक्कन नहीं है। आप बताइएगा, ये कब से मसाइल हैं और अब तक तो काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? 7-8 साल हो गए, ये ऐसे ही चल रहा है। ये सड़कें भी तब से टूटी हुई हैं? हाँ जी, बेशक ऐसे टूटी हुई हैं। बिल्कुल, यहाँ पे काफ़ी मसाइल का सामना है। इंतज़ामिया से लोग शिकवा कर रहे हैं, हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ के जो मसाइल हैं, पानी का मसाइल है, निकासी आब का मसला है, और गलियाँ और सड़कें टूट फूट का शिकार है, गंदगी के मसाइल हैं, उनको फौरी तौर पर हल किया जाए। चूँकि ये रिहायशी इलाका है, यहाँ पर बुजुर्ग भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, लोगों को आने जाने में मुश्किलात है, गाड़ियाँ यहाँ से नहीं गुजर सकती, मोटरसाइकिल यहाँ से गुजरने में उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो बेसिकली बुनियादी तौर पर जो पूरा मोहल्ला है वो मुश्किलात का शिकार नज़र आ रहा है, और उनका मुतालबा ये है कि जल्द से जल्द इनके मसाइल हल किए जाएँ ताकि शहरियों को रिलीफ दिया जा सके। आपका शुक्रिया उसामा। कमिश्नर लाहौर डीसी ऑफिस में कायम मरकजी मॉनिटरिंग कंट्रोल सेंटर का दौरा, ज़ैद बिन मकसूद की इमाम बरगाह बाबुल आलम निशात कॉलोनी के मुंतज़मीन से मुलाकात, मुहर्रम जलूस और में औकात कार की पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। कमिश्नर लाहौर डीसी ऑफिस में कायम मरकजी मॉनिटरिंग को कंट्रोल रूम सेंटर का दौरा, ज़ैद बिन मकसूद की इमाम बारगाह बाबुल आलम निशात कॉलोनी के मुंतज़मीन से मुलाकात, मुहर्रम जलूस में औकात कार की पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। आपको अपडेट कर रहे हैं, कमिश्नर लाहौर डीसी ऑफिस में कायम मरकजी मॉनिटरिंग और कंट्रोल सेंटर का दौरा, ज़ैद बिन मकसूद की मामरगाह बाबुल आलम नशात कॉलोनी के मुंतज़मीन से मुलाकात, मुहर्रम जलूसों में औकात कार की पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। वेलकम बैक। बुलेटिन में आपको बताएं, नए माली साल का आगाज आवाम पर भारी पड़ गया। हुकूमत ने पेट्रोल 8 रुपये 36 पैसे महंगा कर दिया, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10 रुपये 39 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत कीमतें बढ़ने पर आवाम ने गम और गुस्से का इजहार किया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। साल के पहले ही रोज पेट्रोल और डीजल के निर्खों में होशरुबा इजाफा। हुकूमत ने हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 10 रुपये 39 पैसे बढ़ा दी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में भी 8 रुपये 36 पैसे इजाफा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 272 रुपये 98 पैसे फी लीटर मुकर्रर, जबकि पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होने पर शहरियों का गम और गुस्से का इजहार। कहते हैं कि होशरुबा महंगाई के बायस जिंदगी का पहिया चलाना मुश्किल हो रहा है। बच्चों को रोटी नहीं खिला सकते, पेट्रोल कहाँ से डलवाएं? 100 रुपये का पेट्रोल डलवा रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं हम? इससे अलावा हम गवर्नमेंट को और कुछ नहीं कह सकते। पेट्रोल के साथ कैरी बढ़ता है, कैरी के साथ आपकी ट्रांसपोर्ट बढ़ जाती है, ट्रांसपोर्ट के साथ आपकी मार्केट्स जो हैं वो लिंक करती हैं।
A to Z जो है वो हमारी जो इकोनॉमी है हमेशा की तरह डाउनफॉल का शिकार हो रही है। स्कूल वगैरह अकेडमीज वगैरह कॉलेज जाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा काफ़ी अखराजात बढ़ गए हैं। तो पेट्रोल महंगा होने की वजह से हमें मुश्किलात का काफ़ी सामना करना पड़ रहा है। 15 दिन पहले महंगा हुआ था और अब फिर अभी 1 जुलाई पे फिर महंगा कर दिया है। तो टैक्सेस में रिलीफ का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग एक तरफ से रिलीफ थे और दूसरी तरफ से उनको और ज़्यादा तंग कर दें। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह ईरान इसराइल तनाज़े के दौरान आलमी मार्केट में खाम तेल महंगा होना है। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। अब आपको बताएं, नए माली साल शुरू होते ही नए टैक्सेस का तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी आयद। पेट्रोल और डीजल पहले से ही आयद लेवी कम करके नया टैक्स एडजस्ट किया गया। हुकूमत ने IMF की शराइत के तहत पेट्रोल और डीजल पर ₹2.50 फी लीटर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी आयद की। पेट्रोल पर कार्बन लेवी एडजस्टमेंट के लिए PDR कम करके ₹75.52 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल पर पहले ही फी लीटर ₹78 फी लीटर लेवी वसूल की जा रही थी। हाई स्पीड डीजल पर क्लाइमेट लेवी एडजस्टमेंट के लिए PD लेवी ₹74.51 मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल पर इससे कबल PD लेवी ₹78 फी लीटर वसूल की जा रही थी। बात करें ब्रायलर की तो आपको बताएं, ब्रायलर के दाम मुर्गी फरोशों के लिए दर्द सर बन गए। सरकारी रेट लिस्ट में ब्रायलर सस्ता लेकिन होलसेल मार्केट में महंगा। सरकारी रेट लिस्ट में जिंदा ब्रायलर है, जबकि मंडी में ₹300 फी किलो तक ब्लैक में फरोख्त किया जा रहा है। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। ब्रायलर की ब्लैक मार्केटिंग फिर से शुरू। सरकारी रेट लिस्ट में ब्रायलर सस्ता लेकिन होलसेल मार्केट में जिंदा ब्रायलर महंगा दस्तयाब। जिंदा ब्रायलर की फी किलो सरकारी कीमत ₹10 कमी से ₹284 मुकर्रर। होलसेल मार्केट में जिंदा ब्रायलर ₹300 फी किलो तक बेचा जा रहा है। रेट लिस्ट में ब्रायलर गोश्त ₹14 सस्ता। ब्रायलर फरोश परेशान, कहते हैं सरकारी रेट लिस्ट समझ से बाहर है। मंडी में तेजी है, जबकि इंतजामिया ब्रायलर सस्ता जाहिर करके रेट लिस्ट जारी कर रही है। इंतजामिया ब्लैक मार्केटिंग करने वालों को कंट्रोल करे। 2 दिन सस्ता होता है ना, तो 1 दिन में मंडी वाले ब्लैक कर देते हैं। अब देखें, ये 2-3 दिन पहले ये ₹50 नीचे आया, अब जिंदा का रेट ₹50 बढ़ गया है, तो बेचारे दुकानदार क्या करेंगे। आज मंडी तेज चली गई है, कल नीचे थी, एक लेवल पे काम नहीं हो रहा। उसकी वजह ये चाह रहे हैं कि रेट बढ़ा दें। मंडी तो इतनी तेज है, 300 रुपये मुर्गी सेल हुई है, लेकिन लिस्ट में इन्होंने कमी कर दी है। इस फलसफे का हमें नहीं पता चल रहा कि ये क्या कर रहे हैं। जबकि मंडी तेज़ होगी तो लिस्ट में भी रेट तेज़ होगा। मंडी तेज़ है, लिस्ट में रेट कम इन्होंने कर दिया। जब कम होता तेज़ कर देते हैं। इनका जो है ना वो पता नहीं चल रहा कुलिया क्या कर रहे हैं। ब्रायलर की कीमत का तयन तलब और